کہ مرد کا سطر ناک کے اوپر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک جسم کا یہ حصہ لازماً ڈھکا رہنا چاہیے، کسی حال میں بھی نہیں کھلنا چاہیے سوائے اپنی بیوی کے سامنے، اپنی کنیز کے سامنے، یا کسی طبیب اور کسی جراح کے۔ اس کے ضمن میں بھی بعض احادیث میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات سن لیں۔ سنن ابی داؤد میں اور ابن ماجہ میں حضرت علی کی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے مجھ سے فرمایا لا تنظر الی فخذ حی ولا میت، اے علی کبھی بھی مت دیکھنا، نگاہ مت ڈالنا کسی زندہ یا مردہ کی ران پر۔ ران جو ہے یہ چونکہ انسان کے اس سطر کا حصہ ہے تو اس میں یہ تاکید کہ حی ولا میت، کسی زندہ یا کسی مردہ کی ران پر کبھی نگاہ نہ ڈالنا۔ حضرت جرح اسلمی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دفعہ میری ران کھلی ہوئی تھی تو حضور نے ارشاد فرمایا اما علمت ان الفخذ عورت، یہ ترمذی اور ابو داؤد اور موطا کی روایت ہے کہ حضور نے ذرا سرزنش کے انداز میں فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں یہ ران کا کھلا ہوا ہونا جائز نہیں ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ران جو ہے وہ عورت میں شامل، وہ سطر میں۔ حضرت علی کی ایک اور روایت ہے سنن ابی داؤد سے اور سنن ابن ماجہ سے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا تبرز او لا تکشف فخذک، علی کبھی بھی مت کھولنا اپنی ران کو، یعنی یہ عام حال ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے سطر کا معاملہ مستثنا کون ہوگی؟ بیوی ہے، کنیز ہے، یا کسی وقت ضرورت کے وقت طبیب اور جراح جو ہے اس کا معاملہ ہے، باقی یہ کہ کبھی اپنی ران کو مت کھول۔ حضور کا ایک اور ارشاد ہے احفظ عورتک الا من زوجتک وما ملکت یمینک، جس کی وضاحت میں کر رہا ہوں کہ یہ دو استثناءات ہیں، اپنی بیوی یا ملک یمین، اس کے علاوہ اپنے سطر کو کھولنے کی اجازت ہے۔ سائل نے پوچھا جب ہم تنہائی میں ہو تو آپ نے فرمایا فاللہ تبارک و تعالی احق ان یستحیا منہ، اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے حیا کرو۔ علیحدگی میں تنہائی میں بھی بالکل عریاں ہو جانا، اپنے سطر کو کھول دینا یہ پسندیدہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جیسا کہ میں کر رہا ہوں کچھ نہیں ہے، یہ ایک خاص ذہنیت، ایک خاص مزاج، ایک خاص انداز ہے انسان کے سوچنے کا جو اس سے وجود میں ہے، اور اس سے در حقیقت دور دور تک وہ سد باب ہوتا ہے جنسی انارکی کا، جنسی بہراروی کا، شرم اور حیا کے یہ تصورات جو ہیں والحیاء من الایمان شعبۃ من الایمان، اس پر اس قدر تاکید ہے لکھی گئی۔ اچھا، عورت کا سطر جو مرد کے لیے ہے وہ کیا ہے؟ اس کو بھی دو حدیثوں کے حوالے سے آپ سن لیجیے۔ ایک حدیث تو حضرت عائشہ کی دوپٹے کے بارے میں پہلے آ چکی ہے، لیکن یہ پہلے سطر کی بات سن لیجیے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ان کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں اور وہ باریک کپڑے پہنے ہوئی تھی۔ حضور نے فوراً منہ پھیر دیا اور فرمایا یا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحیض لم یصلح لها ان یرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وکفیه، یہ بھی سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اے اسماء، دیکھو جب عورت یعنی جب جوان ہو جائے، جب اسے حیض آنا شروع ہو جائے، اس کے بعد جائز نہیں ہے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے سوائے آپ نے اشارہ کیا اپنے چہرے کی طرف اور اپنے دونوں ہاتھوں، بس یہ پیروں کا ذکر اس وقت نہیں ہوا ہے، لیکن یہ کہ وہ بھی بہرحال سطر سے باہر، چہرے کی ٹکیا اور یہ کلائی سے نیچے کا ہاتھ اور ٹخنے کے نیچے سے پاؤں، یہ تین اجزاء ہیں جسم کے عورت جو عورت کا سطر ہے مرد کے، وہ بیٹا ہو، وہ بھائی ہو، وہ باپ ہو، وہ چچا ہو، وہ دادا ہو، وہ نانا ہو، کسے باشد محرم، وہ پوری فہرست بعد میں آ جائے۔ ایک اور روایت ہے حضرت عائشہ سے کہ ان کے ہاں ان کے اخیافی بھائی عبداللہ ابن طفیل کی صاحبزادی آئی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو انہیں دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری بھتیجی ہے، یعنی اس سے آپ کا حجاب نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اذا عرقت المرأة لم يحل لها ان تظهر الا وجهها والا ما دون هذا وقبض على ذراع نفسه وترك بين قبضتين، وہی مضمون ہے بین الکف مثل قبضته آخر، کہ حضور نے وہی بات فرمائی کہ جب کوئی لڑکی جوان ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کے جسم کے ان تین حصوں کے سوا کوئی اور حصہ نظر نہیں آتا۔ یہ ہے سطر کا تصور، لیکن اس پر ایک اضافہ، اب ظاہر بات ہے کہ ایک عورت نے کرتا پہنا ہوا ہے
जाहिर बात है जिस्म ढक गया, शलवार पहनी हुई है, बाकी जिस्म भी ढका हुआ है, लेकिन ये कि अभी इसके निस्वानी हुस्न का एक अहम हिस्सा है और वो उसका सीना है। इसके लिए इजाफी है हुक्म जो दिया गया दुपट्टे। चुनाचे जो हम ये आयत पढ़ रहे थे उसमें जो फरमाया बल यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, चाहिए कि वो अपने गरीबानों पर अपनी ओढ़नियों के बुक्कल मारे। गोया के इस्लामी माशरत में औरत के लिबास का कुर्ते या कमीज और सलवार के अलावा एक तीसरा लाजमी जुज जो है वो दुपट्टा। इस दुपट्टे के बारे में एक हदीस में पहले आपको सुना चुका हूं, फिर दोबारा सुना रहा हूं। हजरत आयशा फरमाती है कि जब सूरह नूर नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसको सुनकर लोग अपने घरों की तरफ पलटे और जाकर उन्होंने अपनी बीवियों, बेटियों, बहनों को उसकी आयत सुनाई। अंसार की औरतों में से कोई ऐसी न थी जो आयत वल यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना के अल्फाज सुनकर अपनी जगह बैठी रह गई हो। हर एक उठी और किसी ने अपना कमर पटा खोलकर, किसी ने चादर उठाकर फौरन उसका दुपट्टा बनाया। और एक तो इस हदीस से ये हमारे सामने नक्शा आता है कि सहाबा किराम में तामील का जज्बा था, सहाबा में भी सहाबियात। हुक्म आ गया, बस अब उसके बाद कोई चून चरा, कोई सवाल, कोई जिरा, हुक्म आ गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, उनका एक रिवाज था कि कब्र पर बांधे रखती थी कोई कपड़ा, ताकि कब्र कसी रहे घर के काम काज में। क्योंकि आमतौर पर कपड़े ढीले होते थे, कुर्ता पहना हुआ है ढीला है तो वो रुकावट न बने, तो कब्र पटा उनका जो है लिबास का, उनका जो मामूल था, जो उनका रिवाज था, उसमें शामिल। किसी ने अपना वो कब्र पटा खोला और उससे दुपट्टा बनाकर ओढ़ लिया, किसी ने चादर ली और उससे अपना दुपट्टा बनाया। चादर बड़ी होती थी, चादर तो जलबाब है जिसको पहनकर बाहर निकलना। अब अगर कोई और नहीं था तो उसने भी चादर को फाड़ा और उसमें से दुपट्टा बनाया। दुपट्टा छोटी है, ये चादर की तरह पूरे जिस्म को लपेटना मकसूद नहीं है, सर पर और इस तरह आए कि गर्दन और गरीबान और ये के सीने के ऊपर उसका एक बुक्कल लगा हुआ हो। तो ये जो हमने अपनी आंखों से देखा है अपने बचपन में, बच्चियों को, छोटी बच्चियों को भी बड़ी बूढ़ी खवातीन जो है वो डांटती रहती थी, दुपट्टा ठीक करा लो, सर पर सही रखो, इसका बुक्कल सही तौर पर मारो। ये हमारी वो तहजीब थी, हमारा तमक्कुन था, उसकी ये बुनियादें। ऐसे नहीं है कि वो महज रिवाज के तौर पर ये चीजें वजूद में आ गई, बल्कि ये तामुल तवातुर के साथ जो चीजें जिनकी बिना पर हमारी तहजीब ने खास रुख इख्तियार किया, उनमें चीजें शामिल। इससे भी अहम बात है एक और हदीस में जो सुनन अबी दाऊद की है। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो सहाबी हैं कि जो बहुत ही खूबसूरत थे और इन्हीं की शक्ल में, बिल उमूम इन्हीं की सूरत में हजरत जिब्राइल जब भी इंसानी शक्ल में आते थे हुजूर की खिदमत में तो हजरत दहिया कल्बी की शक्ल में आते थे। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मिस्र की बनी हुई बारीक मलमल की का कोई कपड़ा आया, आपने उसमें से एक टुकड़ा मुझे दिया और फरमाया एक हिस्सा फाड़ कर अपना कुर्ता बना लो और एक हिस्सा अपनी बीवी को दुपट्टा बनाने के लिए दे दो, मगर उनसे कह देना कि तजअल तहतहू सौबन ला यसिफुहा, इसके नीचे एक और कपड़ा लगा ले ताकि उनके जिस्म की साख्त अंदर से झांके नहीं। यानी चूंकि बारीक मलमल थी, अब ये जरा नोट कीजिए, बारीक मलमल के दुपट्टे से वो मकसद हासिल नहीं होता, इसलिए कि ये सत्र का इजाफी मामला। वो सत्र जो है जाहिर बात है कि औरत कुर्ता पहनेगी तो दबीज कपड़े का पहनेगी ताकि उसका जिस्म उसमें से छलके नहीं, लेकिन ये कि इसी तरीके से जो इजाफी है यानी औरत के लिबास का तीसरा लाजमी हिस्सा जो घर के अंदर भी उसे अपने इस्तेमाल करना है, वो शलवार कमीज के बाद दुपट्टा इजाफी तौर पर लाजमी है। उसमें हुजूर हिदायत दे रहे हैं कि वो भी इतना बारीक ना हो कि जिसमें उसमें से छलके, गर्दन का जो है इंसान का हिस्सा जो है उसमें से छलक रहा हो, नजर आ रहा हो। और जैसा कि मैं इससे पहले अर्ज कर चुका हूं, बार बार कहने की बात नहीं है, अल्लाह ताला ने जो भी इस तमद्दुन का हंगामा अल्लाह के पेशे नजर था, इसे दुनिया को जब तक भी इस रौनक के साथ बाकी रखना है तो मर्द और औरत के माबैन इंतहाई कशिश अगर न हो तो ये तमद्दुन का सारा जो खेल है खत्म हो। कौन शादियां करे, कौन गृहस्थी के बोझ उठाए, कौन औलाद की परवरिश की जिम्मेदारियां अपने सर पर ले, ये शदीद जो है एक कशिश है एक दूसरे पे। और जहां ये शिद्दत जो है यहाँ इस काम के लिए जरूरी है, उतनी ही उसके अंदर खतरे का और सुर्ख बत्ती का मामला मौजूद है कि वो अगर एक खास रुख से जरा हटकर वो कशिश जो है वो अगर बरूए कार आ जाएगी तो अनारकी हो जाएगी, जिनसी तौर पर वहां पे बिल्कुल जो नज्म जो है टूट कर रह जाएगा। खानदान का इदारा जो है
वो मुतज़लज़ल हो जाएगा, गैर मुस्तहकम हो जाएगा, पूरा माशरा जो है डिस्टेबलाइज हो जाएगा। इस एतबार से ये तमाम चीजें जो है तदरीजन सामने आ रही हैं। हुजूर ने फरमाया ये मलमल का जो कपड़ा है ये अपनी बीवी को दे दो, ये टुकड़ा तुम उसमें से अपने लिए कुर्ता बना लो। मर्द का जो है सत्र जो है जाहिर बात है कि वो तो शलवार नीचे पहनी हुई है या इज़ार है, तो असल सत्र जो है मर्द का वो तो नाप के ऊपर से लेकर घुटने के नीचे तक है, वो तो छुपा हुआ है। तो कुर्ता अगर बारीक मर्द पहन ले तो हर नहीं, लेकिन औरत को कुर्ता भी दबीज पहनना है। इसलिए कि एक और हदीस में आया है कि हुजूर ने लानत फरमाई, लाना अलकासियातिल आरियात, जो कपड़े पहनकर भी नंगी रहती है। यानी अगर कपड़े उनके इतने बारीक हैं तो उसमें से जिस्म छलक रहा है, तो उधर हकीकत कपड़े नहीं पहने हुए उन्होंने, बल्कि वो तो अलकासियातुल आरियात, कपड़े पहनकर भी नंगी रहने वाली है। लेकिन इस वक्त जो मैं खास तौर पे आपको तवज्जो दिला रहा हूं वो ये कि न सिर्फ कुर्ते के लिए बल्कि उस दुपट्टे के लिए भी आपने फरमाया कि ये चूंकि बारीक मलमल का है कपड़ा, तो अपनी बीवी से कह देना इसका दुपट्टा बनाए, लेकिन इसके नीचे कोई कपड़ा अस्तर लगा ले, ताकि ये कि ला यसिफुहा, ताकि ये कि इसमें से उसके जिस्म का जो भी नशे वो फराज है, जो भी महासिन है वो जाहिर। ये मामला हुआ औरत के लिबास की इजाफी शय यानी दुपट्टा, और दुपट्टे के बारे में ये हिदायत कि वो भी बारीक है। अब आगे चलिए इस तवील आयत में जो मैंने पिछले नशिस्त में पढ़ी थी और अब दोबारा पढ़ूंगा, इसमें पर्दे के तकमीली हुक्म जो है वो दे दिए गए। इसलिए कि ये आयत इससे पहले आ चुकी है सूरह अहज़ाब में कि किन किन मर्दों का घर में आना जाना जो है, जब हज़रत हुजूर के अज़वाज मुतहरात के बारे में फरमाया गया तो कोई नहीं, बाप उनके आ जाएं, भाई आ जाएं, वो सारे जो भी फेरिस्त वहां आई थी वो मुख्तसर थी। यहां पर अब वो महरमों की फेरिस्त मुकम्मल थी। इसमें मैं सबसे पहले तवज्जो दिलाऊंगा, अगर इससे बाहर भी कोई महरम है तो फिर ये कि ये फेरिस्त जो है ये फिर हमें सोचना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने फिर ये काहे को इतनी जो है एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी का लफ्ज इस्तेमाल करने पर मजबूर हो कि ये इतनी फेरिस्त क्यों दी। मालूम हुआ कि ये फेरिस्त जो है हतमी है और यकीनी है, इससे बाहर लाजिमन वो नामहरम शुमार। कहीं कहीं मामला आएगा वो मैं बाद में तफसील कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले ये जो मैंने आयत पढ़ी थी फिर तो वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबउलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना औ आबाइ बउलतिहिन्ना औ अबनाइहिन्ना औ अबनाइ बउलतिहिन्ना औ इख्वानिहिन्ना औ बनी इख्वानिहिन्ना औ बनी अखवातिहिन्ना औ निसाइहिन्ना औ मा मलकत अयमानुहुन्ना अबि ताबिईन गैर उलिल इर्बति मिनर रिजाल अबि तिफ्लिल लज़ीना लम यज़हरु अला औरातिन निसा। ये इतनी तवील आयत, इतनी गर्दान इन रिश्तों की देने की जरूरत है। जो शख्स कुरान पर ईमान रखता हो कि अल्लाह का कलाम और जिसे यकीन हो कि अल्लाह ताला के यहाँ लफ्ज़ाजी नहीं, न कोई जरूरी चीज छूट गई है किसी निसियान की वजह से, न कोई गैर जरूरी चीज इस कलाम में शामिल है। ये दोनों नकाइद जो है वो इंसानी कलाम से तो होते। बस औकात मुझे महसूस होता है कि मैं फला बात बयान करते हुए वो फला बात रह गई, भूल गए, अगले दर्स में जाके मैं उसकी कोई तलाफी करूंगा। इंसानी कलाम में तो लाजमन हो कभी कोई जरूरी बात रह जाएगी और कभी बिला जरूरत भी कोई बात जवाब पर आ जाएगी, लेकिन ये कलाम इलाही है, इसमें न कोई बिला जरूरत शय आई है न कोई जरूरी शय इससे बाहर है। इसी को कहते हैं मंतिक में जामे और माने। ये दो सिफात, जामे है कि तमाम जरूरी चीजें इसमें मौजूद, माने है कि कोई गैर जरूरी चीज इसमें नहीं आता, दाखिल नहीं होता। तो ये कलाम जो है कलाम इलाही है, इसमें ये रिश्ते जो दिए गए। अब इसमें नोट कीजिए असलुल उसूल जो नजर आएगा इसमें वो क्या है, ये हिकमत जान लीजिए। असलुल उसूल ये है महरम वो मर्द है जिनसे किसी औरत का किसी हाल में निकाह नहीं हो सकता। एक तो औरत किसी के निकाह में है तो किसी और से निकाह हो ही नहीं सकता, ये तो अलग मामला है। लेकिन फर्ज कीजिए उसका शौहर फौत हो जाए या उसका शौहर उसे तलाक दे दे, अब भी ना हो सके निकाह, जिनको हम कहेंगे कि वो हराम है अबद, वो जो रिश्ते के जिनमें निकाह का रिश्ता कायम होना अबदन हराम। असल में नफ्सियाती एतबार से गौर करेंगे तो वही दर हकीकत माशरती तौर पर और सोच के अंदर, इंसान के नुक्ते नजर के अंदर ऐसी चीज रासिख हो जाती है कि बहन के बारे में कभी ख्याल नहीं आएगा भाई को। वैसे ये कि कुरान उसमें भी एहतियात का हुक्म दे रहा है, लेकिन फिर भी चूंकि वहां निकाह का कोई इम्कान ही नहीं,
लिहाजा तो बहुत ही बदतीनत इंसान होगा कि जिसका जहन उधर जाए, वरना बहन के बारे में यह ख्याल नहीं आएगा। इसी तरीके से जहां निकाह हो ही नहीं सकता, कोई इम्कान ही नहीं, वहां जहन जो है उधर जाता नहीं। इस एतबार से उनके बारे में आजादी बख्शी गई है कि औरत खुले चेहरे के साथ, बल्कि यह कि जेवर पहना हुआ हो, कोई उसने अगर फट कीजिए बनाव सिंहार भी किया हुआ हो तो बनाव सिंहार के साथ, जेवर के साथ वो अपने इन रिश्तेदारों के सामने आ, अपनी जीनत का इजहार कर सकती है अपने इन रिश्तेदारों के साथ। और ये रिश्तेदार कौन है? असल उसूल जिनसे किसी हाथ में भी निकाह नहीं हो सकता। चुनाचे वो कौन है? बहुलत हिन्ना तो खैर शौहर है, वो तो हर हाल में वो उनके महरम ही है, बल्कि सबसे बढ़कर महरम है, उनके लिए ना कोई सत्र है ना कोई मामला है। अब उसके बाद करिए और आबा हिन्ना, अपने आबा, आबा में दादा भी शामिल हो जाएगा, नाना भी शामिल हो जाएगा, ये आबा में, ये उनके ताबे। और आबाए बहुलत हिन्ना, या अपने शौहरों के आबा, शौहरों के आबा में भी शौहर का बाप, शौहर का दादा, ये शौहर का नाना, ये भी मुहर्रमात अब्दिया। और अपनाए हिन्ना, या अपने बेटे, और अपने बेटों में अपने बेटे, अपने पोते, ये सब के सब जो भी एक लाइन है वो अपना के हुक्म में आए। और अपनाए बहुलत हिन्ना, या अपने शौहरों के बेटे, अपने शौहरों के पोते। हो सकता है कि आप जिस औरत का आज निकाह है किसी और से पहले निकाह करा और अब किसी और के निकाह में है, वो शौहर साबिक फौत हो चुका, उसके बेटे भी वो हमेशा के लिए उसके लिए हराम है कि उनसे निकाह नहीं हो सकता, लिहाजा वो भी महरम। और इख्वान हिन्ना, या अपने भाई, अब नोट कीजिए, शौहर के भाई नहीं, अपने शौहर का भाई जिसका नाम देवर है, उसके बारे में तो हदीस में अल्फाज आए हैं कि हम वो तो मौत के दर्जे में। और इसको मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने बिल्कुल सही लिखा है कि सिर्फ देवर नहीं, देवर के इस एतबार से शौहर के इन लॉज के जितने रिश्ते, शौहर का चचा वो महरम नहीं, शौहर का भतीजा महरम नहीं, अपना चचा, अपना भतीजा ये महरम है। आपने फरमाया और इख्वान हिन्ना और बनी इख्वान हिन्ना, या अपने भाई या अपने भाइयों के अपने भाइयों के बेटे, और बनी अखवात हिन्ना, या अपने भांजे अपनी बहनों के बेटे। ये है वो रिश्ते कि जिनके साथ किसी सूरत में कभी औरत का निकाह नहीं, लिहाजा इनके सामने औरत खुले चेहरे के साथ, और जिसको आजकल मेकअप कहा जाता है वो भी अहादीस में आया है, औरतों को बनाओ सिंगार का हुक्म दिया गया है, बुरी बात नहीं है। उनके अंदर जो है जिस्मानी हुस्न को पुरकशिश बनाए ताकि शौहरों की तबीयतें उनकी तरफ माइल हो, उनके लिए वो कशिश पैदा हो जाए, ये मतलूब है, पसंदीदा है। घरेलू जिंदगी के अंदर ये चीजें जो है वो किसी दर्जे में भी नापसंदीदा नहीं है। अगरचे बाद अहादीस में हुजूर ने बड़ी दुआ दी है उन खवातीन को, मलगजे गालों वाली खवातीन जो घर के काम काज में लगी हुई हैं, मैली कुचैली हैं घर के काम काज की वजह से, वो दूसरी बात है। लेकिन ये कि शौहर के घर आने का वक्त हो जाए तो उस वक्त वो कोई अपने आप को दुरुस्त करे और बनाव सिंगार जो है ये फितरी चीज है जो होनी चाहिए। लेकिन अपने इस बनाव सिंगार के साथ, अपने जेवरात के साथ, और भी अपनी खुशबू के साथ अपने इन महरम रिश्तेदार मर्दों के सामने वो आते। ये लिस्ट है, और ये लिस्ट जो है इसकी असल हिकमत क्या है जो मैंने अर्ज की है कि इसमें इनके साथ किसी भी हाल में कोई निकाह का सवाल नहीं, चाहे वो शौहर जिसके निकाह में वो आज औरत है वो फौत हो जाए या तलाक दे दे, तब भी इनसे रिश्ते जो है वो नहीं हो सकते, गुनाह की हद का कोई। इसमें एक बात और नोट कर लीजिए, ये रिश्ते चारों तरह के होंगे जिनसे हुर्मत साबित होती है, और वो चारों रिश्ते, चारों तरह के ये तमाम रिश्ते जो है ये महरम शुमार होंगे। हकीकी यानी माँ बाप दोनों की तरफ से, भाई है या उसके भाई के बेटे हैं, बहन है बहन के बेटे हैं, या अखियाफी या अल्लाती। अल्लाती वो कहलाते हैं कि बाप एक है माएँ दो है, लेकिन ये रिश्ता भी इस एतबार से बिल्कुल वो हकीकी रिश्ते के हुक्म में है, बल्कि अरब में तो अल्लाती को तो हकीकी ही मानते हैं। अखियाफी वो है कि जो माँ एक है बाप दो है, बाप अलग है, वो भी इन्हीं के झैल में आए। और चौथा रज़ाई, जिनका दूध पिया है किसी खातून का, उसके हवाले से भी रिश्ते कायम। उस जिस औरत का दूध पिया है किसी औरत ने, उस औरत का शौहर भी दर हकीकत वो बाप के हुक्म में आ गया, आबाए हिंदा के हुक्म में आ गया। उस औरत का बेटा जो है वो भी दर हकीकत अपने भाई के दर्जे में आ गया, वो उनके इख्वान हिंदा के दर्जे में आ गया।
تو حقیقی ہو، اللہی ہو، اخیافی ہو، رضائی ہو، چاروں حوالوں سے ان رشتوں کی فہرست یہ ہے محرم، اور یہ محرم وہ ہے کہ جن سے کسی صورت میں بھی نکاح کا سوال ہے۔ لیکن اب اس سے بھی زیادہ اہم حصہ سامنے آ رہا ہے کہ وہاں تیاری کر کے آیا ہوا ہوں، لیکن یہ کاغذات وغیرہ جو ہے آگے پیچھے ہو کر گڑبڑ کر رہے ہیں۔ جی، ان رشتہ داروں کے بعد اب جو معاملہ آ رہا ہے، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، اور کن کن کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ، اپنے زیبائش اور آرائش کے ساتھ، اپنے اور بناؤ سنگھار کے ساتھ آ سکتی ہے۔ رشتہ داروں کے بعد آیا او نسائے ہند، نسائے ہند سے مراد کیا؟ عورتیں بھی اپنی عورت، یہ سمجھیے کہ تاکید کی انتہا ہو رہی، غیر عورتیں بھی نہیں، غیر عورتوں کے ساتھ خلا ملا اور بہت ان کے ساتھ اختلاط اور بے تکلفی بھی فتنے پیدا کرنے والی ہے۔ اس اعتبار سے یہاں پر میں ایک تو آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر سنا رہا ہوں، اور ایک میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں ہمارے آج کے معاشرے کے اعتبار سے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں خط لکھا، کیونکہ وہ شام میں کمانڈر وہ تھے، وہاں پر جو بھی فتوحات ہو رہی تھی وہیں پر حضرت ابو عبیدہ حضرت خالد جزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معزول کیا گیا، اس کے بعد وہی کمانڈر تھے، وہی وہاں کے گویا کے حاکم۔ تو حضرت عمر نے خط لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کی بعض عورتیں غیر مسلم عورتوں کے ساتھ حماموں میں جانے لگی ہیں، حالانکہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کے جسم پر اس کے اہل ملت کے سوا کسی اور عورت کی نگاہ بھی کرے۔ اہل ملت نسائے ہند، مسلمان عورتیں، بلکہ اس میں بعض حضرات کو مسلمان بھی سب نہیں، جان پہچان کی عورتیں جن کے بارے میں معلومات حاصل وہ عورتیں، ورنہ مسلمان عورتیں جو ہے وہ بھی نہ معلوم کس کس طرح کے جو ہے پیام رسانیاں کر سکتی ہیں اور فتنے اٹھا سکتی ہیں، لہذا وہاں تک بھی بات پہنچی ہے۔ لیکن یہاں اس حضرت عمر کا خط جو ہے اس میں اسی کا تذکرہ ہے۔ یہ خط جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تو وہ ایک دم گھبرا کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، خدایا جو مسلمان عورت محض چوری ہونے کے لیے ان حماموں میں جائے اس کا منہ آخرت میں کالا۔ یہ بیہقی میں بھی ہے روایت موجود، ابن جریر میں بھی، ابن کثیر میں بھی۔ میں خاص طور پر آج کے حال کے حوالے سے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، آج کے ماحول کے اعتبار سے، کیونکہ پاکستان میں جو طبقہ اس وقت آپ کہہ لیں کہ وہ حکمران طبقہ ہے یا صاحب اثر طبقہ ہے، تعلیم یافتہ طبقہ ہے، وہ ہمارے ہاں ایک روایت جو شروع ہوئی تھی سماجی اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی، فکری اعتبار سے بھی، جس کا نقطۂ آغاز سر سید احمد خان، سر سید نے علی گڑھ قائم کیا، وہاں سے جو بھی مسلمانوں کی تعلیم یافتہ لوگوں کی ایک کھیپ تیار ہوئی، وہ ہماری قومی زندگی میں وہی اصل میں سمجھیے کہ رہنما بنی، اور اسی طرح اسلامیہ اسکول، اسلامیہ کالج، یہ سب در حقیقت جتنے اسلامیہ کالج بنے ہیں بر عظیم پاک و ہند میں، وہ سب مسلم اورینٹل اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ کا جو ہے اس کی بیٹیوں کے مانند۔ تو سر سید کا جو حال تھا، جس کو کہ یہاں پر کوٹ کیا جاتا ہے، سر سید پھر علامہ اقبال، لیکن ان دونوں کا حال یہ کہ یہ پردے کے معاملے میں انتہائی صاف، اور سر سید کا یہ واقعہ بڑا ہی ہمارے لیے سبق آموز ہے کہ اس وقت جب کہ انگریزی دور اور ابھی انگریز آیا تھا نیا نیا، اور اس کی حکومت کا دبدبا اور اس کی سطوت، گورنر جو تھا یو پی کا، اس نے سر سید احمد خان کو پیغام بھیجا کہ میرے گھر کی خواتین آپ کے خواتین سے ملنا چاہتے۔ سر سید کا جواب یہ تھا، اور یہ عبرت آموز اور سبق آموز ہے، ہم سب اس کو کوٹ کیجیے اور عام لوگوں تک پہنچائیے کہ نہیں جناب، ہماری خواتین کا غیر خواتین سے بھی فرق۔ گورنر یو پی، لیکن اس گورنر کو جواب یہ دیا سر سید کو سند کے طور پر کوٹ کرنے والے، یہ پہلو اس کا جو ہے کسی طور سے بھی سامنے رکھنے کی نہیں جاتا۔ علامہ اقبال پردے کے شدید پابند، پردے کے قائل، انہوں نے تو خیر اس کو فلسفہ بنایا ہے کہ عورت جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق ہے، اس کے جسم کے اندر تخلیق ہوتی ہے، اور تخلیق کا تو خاصہ یہ ہے، خالق جیسے چھپا ہوا ہے نگاہوں سے، ایسے ہی جس میں یہ خلاقی کا وصف جو ہے اس کا ایک عکس موجود ہے، چھپا ہے نا۔
औरत औरत है, छुपाई जाने वाली है, उसको छुपा कर रखना चाहिए। औरत हमारे यहाँ लफ्ज इस्तेमाल मस्तूरात, मस्तूर छुपी हुई है, लेकिन वो मस्तूरात जो है मकसूफात बनी हुई, और वो जो है खुल्लम खुल्ला नीम उड़िया लिबासों में सड़कों पर चलती फिरती नजर आ रही है। नाम उनका मस्तूरात है, नाम हम औरत है, औरत जबकि वो सामने मौजूद है, जबकि उसे छुपा हुआ होना चाहिए। बहरहाल सर सैयद अहमद खान का ये वाकया जो है ये बहुत अहम है और इसको ज़हन में रखिए। अब आगे आइए, निसाए हिन्ना के बाद है औ मा मलकत ऐमानुहुन्ना, और जो उनके गुलाम हो या कनीजे हो। मिलके यमीन असल में लफ्ज जो है ये मर्द और औरत दोनों के ऊपर उसका इतलाक हो जाएगा, गुलाम पर भी और कनीज पर भी। औ मा मलकत ऐमानुहुन्ना, या जो उनके दाहिने हाथों की मिल्कियत हो। अब इसमें इख्तिलाफ पैदा हुआ है, लेकिन जो इख्तिलाफ पैदा हुआ है उससे पहले एक बात नोट कर लीजिए, गुलामों को कभी भी आप कयास नहीं कर सकते आजकल के मुलाजिमीन। अगर इस लफ्ज से इंसान कोई जवाब पैदा करता है आजकल के खानसामों और बैरों और ड्राइवरों और चौकीदारों और मुलाजिमों का, तो ये कयास माल फारिग। गुलाम वो होता था जो मिल्कियत होता था, और मिल्कियत होने के हवाले से उसकी एक ज़हनियत बनती थी। वो ज़हनियत कुछ ना कुछ मुशाबे थी उसी ज़हनियत के, कि जैसे एक शख्स जो है भाई अपनी बहन के बारे में ये नहीं सोच सकता कि मेरी इससे शादी हो सकती है, लिहाजा उसकी जो ज़हनी कैफियत, नफ्सियाती जो एटीट्यूड है वो उसी अंदाज में बनेगा कि ये तो मेरे लिए हमेशा के लिए अबदी हराम। इसी तरीके से गुलाम का मामला ये होता था कि उसके जहन में इस तरह का कोई ख्याल आ ही नहीं सकता। लेकिन आज का जो मुलाजिम है, वो खानसामा हो आपका, वो आपका बहरा हो, वो आपका शॉफर हो, वो आपका चौकीदार हो, कोई हो, तो मुलाजिम है। सियासी स्टेटस उसका और आपका बराबर, एक वोट आपका एक वोट उसका। आपकी मुलाजमत से फारिग हो गया तो बराबर का शहरी है, बराबर की उसकी इज्जत नफ्स है, बराबर की हैसियत है, स्टेटस में आपसे उसके दरमियान कोई फर्क नहीं। ये सारा फर्क जो है ये इंतजामी है, उस वक्त तक के लिए है जब तक वो आपकी मुलाजमत है। कल वो आपकी मुलाजमत को जो है ठोकर मारे और जाए, बराबर का आपका हकदार है, बराबर का स्टेटस है। इसलिए आजकल के जो है मुलाजिमीन, उनके बारे में औ मा मलकत ऐमानुहुन्ना से कोई सनद लेना, जवाज लेना, ये तो गोया के सिवाय इसके कि ज़हनियत बिगड़ी हुई हो, नियत में फतूर हो, इसका कोई जवाब नहीं। अलबत्ता मिल्क यमीन के बारे में भी एक इख्तिलाफ है, वो इख्तिलाफ आप नोट कर दीजिए। एक राय ये है कि इससे मुराद सिर्फ लौंडिया, और बड़ी पुख्ता दलील है, वो दलील जो है इमाम अबू हनीफा ने दी है, क्योंकि ये राय जो है हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की है रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी फुक़हाए सहाबा में बड़ी चोटी का उनका मकाम। फिर इमाम अबू हनीफा, वो तो यूं समझिए कि फिक़ह के चारों इमामों में मेरे नजदीक इमाम आजम है, इसमें कोई शक नहीं। जिस कदर अल्लाह ताला ने एक्यूट सेंस दिया था उन्हें कानून का और फलसफा कानून का, वो मेरे नजदीक और किसी के पास नहीं, बल्कि दुनिया में कहीं और नहीं हो इस दर्जे बसीरत। उनकी राय तो ये है कि यहाँ औ मा मलकत ऐमानुहुन्ना से मुराद सिर्फ कनीजे हैं। चूंकि निसाए हिन्ना आया, निसाए हिन्ना में चूंकि मुसलमान औरतें हो गई, लेकिन कनीजे हो सकती है गैर मुस्लिम भी हो। निसाए हिन्ना से तो गैर मुस्लिम औरतें भी नामहरम हो गई। कनीज हो सकता है कोई यहूदी कनीज हो, कोई ईसाई कनीज हो, कोई और कनीज हो, कोई मजूसी कनीज हो। तो कनीजों का जो कि चाहे गैर मुस्लिम हो, उनका जवाब यहाँ पैदा किया गया औ मा मलकत ऐमानुहुन्ना, जो उनकी मिल्क यमीन हो। गोया के निसाए हिन्ना से इजाफा किया गया कि निसाए हिन्ना में चूंकि इतलाक सिर्फ मुसलमान औरतों पर हो रहा है, उनकी औरतें वो महरम है, मुसलमानों की औरतें या जान पहचान की औरतें, उस पर एक मुस्तजाद किया जा रहा है कि कनीज अगर उनकी है तो चाहे गैर मुस्लिम है, चाहे अजनबिया है, वो भी महरम में आ जाए। लेकिन बहरहाल दूसरी राय भी है, और दूसरी राय इसमें हजरत आयशा की राय भी है, हजरत उम्मे सलमा की है। ये दोनों अज़वाजुन नबी हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। फिर बाद अइम्मा अहले बैत की राय है और इमाम शाफ़िई की राय। वो राय यह है कि गुलाम भी इसमें शामिल, मिल्क यमीन में मर्द गुलाम भी शामिल है। उसके सामने भी औरत खुले चेहरे के साथ, और वो भी जो भी अपनी जीनत है उसके साथ आ सकती है। उसके लिए दो उनके पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात हैं, उनसे सनद मौजूद है। एक वाक़या यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गुलाम अब्दुल्लाह इब्न मसअद अल-फराजी को लेकर, फजारी को लेकर आए हजरत फातिमा के रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। वो उस वक्त एक ऐसी चादर ओढ़े हुई थी जिससे सर ढांकती थी तो पांव खुल जाते थे,
और पांव ढांकती थी तो सर खुल जाता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी घबराहट देखकर फरमाया, क्योंकि गुलाम साथ आया था हुजूर के, तो उन्होंने फौरन कहा कि वो तो नामहरम है, फौरन अपनी चादर जो है जलबाब, वो जलबाब ले ले। और जलबाब वो इतनी छोटी थी कि उससे सर और पैर बैकवक्त ढांपना मुमकिन नहीं हो रहा था। तो देखा हुजूर ने फातिमा को रजी अल्लाह तआला अन्हा के बड़ी परेशान है, तो आपने फरमाया लैसा अलैहि के बाद इन्नमा हुआ अबू के व गुलाम के, ए फातिमा घबराओ नहीं, तुम्हारे ऊपर कोई हर्ज की बात नहीं है, इतनी परेशान न हो। इस पर जो आए हैं तुम्हारे यहाँ सिवाय तुम्हारे वालिद के और तुम्हारे गुलाम के कोई। गोया के गुलाम के बारे में भी हुजूर ने यहाँ इस हदीस से ये मालूम होता है, इस वाक़े से कि कुछ रियायत है। लेकिन फिर ध्यान में रखिए गुलाम की बात हो रही है, मुलाजिम की बात नहीं। आजकल के मुलाजिमीन को गुलाम पर क़यास करना ये क़यास माल फारिग, ये सिवाय इसके कि बदनीयती हो उसके लिए कोई और बात मैं नहीं कह सकता। इसी तरह एक और है, हुजूर का इरशाद है, ये सुनन अबी दाऊद में और जामे तिर्मिज़ी में, सुनन इब्न माजा में है, हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि हुजूर का इरशाद है, इज़ा कान लिइहदा कुन्ना मुकातिबुन व कान लहू मा युअद्दी फलतहतसिब मिनहु, कि ऐ मुसलमान औरतों, तुम में से अगर किसी का कोई गुलाम हो और वो गुलाम वो हो जिससे मुकातबत हो गई, यानी मुआहदा हो गया है कि तुम इतनी रकम दे दोगे तो तुम आजाद हो जाओगे, और उसके पास वो रकम मौजूद हो, यानी अंदाजा हो कि ये मुमकिन है इसके लिए वो रकम अदा करके आजादी हासिल कर लेना, तो उससे हिजाब शुरू कर दो फौरन। यानी उसके दिल में अब ख्याल आ सकता है कि कुछ ही अरसा रह गया है, मैं अपनी बकिया रकम भी अदा कर दूंगा, फिर मैं आजाद हो जाऊंगा, आजाद हो जाऊंगा तो फिर निकाह भी कर सकता, वो मामला था वो एक गुलामी का, वो बैरियर खत्म हो जाएगा, तो उससे फिर हिजाब भी शुरू कर दे। फलतहतजिब मिन हो, तो उसके लिए लाजिम है कि उससे पर्दा करे। तो इससे गोया कि एक इम्कान पैदा हुआ कि किसी औरत का ऐसा गुलाम है जिससे कोई मुकातबत नहीं हुई, जिसके के आजाद होने का कोई रास्ता अभी पैदा नहीं हुआ, तो उससे अगर वो पर्दा न करे तो इस हदीस की रूह से उसका भी गुंजाइश निकलती है। तो मैंने दोनों बातें आपके सामने अर्ज कर दी हैं। एक तो ये कि इसमें राय और मेरी राय का रुझान गालिब जो है वो पहली राय की तरफ है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की राय और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय। यहाँ मुराद गुलाम मर्द नहीं है बल्कि सिर्फ गुलाम कनीजे हैं, और सिर्फ क्योंकि उनमें गैर मुस्लिम भी कोई हो सकती है इसलिए उसका इजाफी तौर पर जिक्र किया गया, निसाए हिन्ना के बाद मा मलकत ऐमानुहुन। लेकिन दूसरी राय भी है, अगर ये कि किसी को उस राय पर ज्यादा एतमाद हो और ज्यादा उसकी मुआफ़क़त उसको उसका ज़हन महसूस करे, उस पर अमल करे। लेकिन फिर मैं अर्ज करूंगा कि गुलाम का मामला है, ये किसी मुलाजिम का मामला। अब आगे चलिए, अब ताबईन गैर उलिल इरबत, या ऐसे ताबे लोग हो कि जिन्हें कोई सिरे से सरोकार ही ना हो औरतों के साथ, इसके बारे में मुफस्सिरीन के माबैन बड़ा इख्तिलाफ है। इससे मुराद क्या? एक राय यह है कि कुछ लोग ऐसे बुद्धू किस्म के होते हैं, मुगफ्फल किस्म के होते हैं, उन्हें कोई पता ही नहीं, कोई मामला ये ज़नो शौ का मामला जो है उसके पता ही नहीं है, तो इस किस्म के लोग हो सकते हैं, इससे मुराद। एक ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अगरचे गुलाम तो नहीं लेकिन का खानदानी तौर पर किसी खानदान के ताबे चले आ रहे हैं और उनके मर्दों के अंदर कभी उस जो ऊंचा खानदान है, बड़ा खानदान है, उसकी खवातीन के बारे में कोई ख्याल तकरीबन आना मुहाल हो, उससे मुराद ये। या कोई घरों के अंदर रहते हैं इसी तरीके से लोग जो है कोई किसी उज़्र की वजह से। लेकिन एक राय ये भी है कि इससे मुराद जो है वो मुखन्नस किस्म के लोग कि जिनके अंदर वो रजूलियत नहीं है और जिनमें मर्दानगी नहीं है, तो वो मुराद है। लेकिन उसके ज़िम्न में मैं चाहता हूं कि एक वाकया भी आपको सुना दूं ताकि इसमें जो कोई गुंजाइश निकलती नजर आए तो उसमें भी मालूम हो जाए कि उस गुंजाइश की भी एक हद है, उससे आगे वो बात नहीं जाएगी। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई और अहमद वगैरह मुहद्दिसीन ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत किया है कि मदीना तैयबा में एक मुखन्नस था जिसे अज़वाज मुतहरात और दूसरी ख़वातीन गैर उलिल इरबा में शुमार करके अपने यहाँ आने देती थी। ये तो है ही, मतलब ये कि इसका कोई मामला ऐसा नहीं है, तो आ जाए कोई हर्ज नहीं। एक रोज जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा के यहाँ तशरीफ ले गए तो आपने उसको हजरत उम्मे सलमा के भाई अब्दुल्लाह इब्न अबी उमैया से बातें करते सुन लिया। वो बातें क्या कर रहा था? हजरत उम्मे सलमा के भाई से वो कह रहा था कि कल अगर ताइफ फतह हो जाए तो गैलान सख्फी की बेटी बादिया को हासिल किए बगैर न रहना। फिर उसने बादिया के हुस्न और उसके जिस्म की तारीफ करनी शुरू की
اور इस दर्जे उससे उसकी तारीफ बयान कर दी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें सुनी तो फरमाया, खुदा के दुश्मन, तूने तो उसमें नजरें गाड़ दी गोया। फिर आपने हुक्म दिया कि इससे पर्दा करो, यानी ये बदमाश जो है ये मुखन्नस तो है, लेकिन ये कि इसके ऊपर ये एतमाद मत करो, बल्कि जब इसका मामला ये है कि ये औरत के निस्वानी हुस्न का इस तरह जायजा लेता है और अपनी इस आजादी से जो है फायदा उठा रहा है, तो इस पहलू से ये लफ्ज बदमाश मैं चाहता हूं कि आप अपने जहन से निकाल दें। इस वक्त वो एक मुहावरे में मेरी जुबान से निकल गया है। तो बहरहाल हुक्म ये दिया हुजूर ने कि इससे पर्दा करो, आइंदा ये घरों में ना आने पाए। इसके बाद आपने उसे मदीने से भी बाहर निकाल दिया और दूसरे मुखन्नसों को भी घरों में घुसने से मना कर दिया। इससे असल में हमारे सामने मसले की असल शक्ल आ जाती है कि दर हकीकत मतलूब क्या है, पेश नजर क्या है। असल सद्दे बाब है वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। उसके लिए है ये रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, दूर दूर तक उसके दरवाजे बंद करने की कोशिश हो रही है। अब इसमें एक तो अगला जो टुकड़ा आ रहा है उसको नोट कीजिए, वला यदरिबना अब तिफ़्लिल लज़ीना लम यज़हरु अला औरातिन निसा। ये आखिरी मद है जो महरम है, जिनके सामने कोई औरत अपनी ज़ेबाइश आराइश के साथ आ सकती है, खुले चेहरे के साथ, यानी वो बच्चे कि जिन्हें अभी औरतों के मख्फी मामलात का इल्म नहीं, वो नाबालिग बच्चे भी मोहल्ले के हों, पड़ोस के हों, आए जाएं, कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद जो हुक्म आ रहा है इसके ज़िम्न में भी मुझे मुतादिद हदीसें आपको सुनानी है। मैं देख रहा हूं कि वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन, और न उनको अपने पांव मारकर चलना चाहिए कि जान लिया जाए जो वो छुपाए हुए हैं अपनी जीनत में से। पांव में कोई पाजेब पहनी हुई है, उसमें कोई घुंघरू लगे हुए हैं, एक औरत चलती हुई जा रही है, पांव मार कर चल रही है, आवाज हो रही है, तो चाहे उससे छत्र भी ढांका हुआ है, उसने जलबाब पीली हुई है, लेकिन यह कि वहां मर्दों का ज़हन मुंतकिल होगा कि कोई औरत जा रही है। असल सारा मामला फसाद इसमें कि ज़हन का उधर मुतवज्जे होना, ज़हन के साथ इंसान के एहसास जज्बात की तरफ मुतवज्जे होते हैं। इन चीजों को रोकने के लिए तो सारा बंदोबस्त किया जा रहा है। इस मामले की मैं शरह में चंद चीजें आपको और सुना देना चाहता हूं। इसमें नंबर एक है तात्तुर, इतर लगाकर निकलना बात। जैसे पाजेब की झंकार से जहन जाएगा किसी मर्द का कि कोई खातून जा रही है, औरत जा रही है, कैसी जा रही है, उसका कद ही देख ले, कदो कामत क्या है, सरो कामत है क्या है, बाहर आदमी जो भी मैं जरा बातें जो है उरिया अंदाज में कर रहा हूं ताकि बात खुलकर सामने, तो जहन को मुंतकिल होने से रोकना है। इस मामले में अगर कोई औरत खुशबू लगाकर गुजरी, ये तो गोया तो उससे भी कहीं बढ़कर बात हो गई। उस खुशबू की वजह से जहन मुतवज्जे होगा ये कौन पास से गुजरा है, कौन यहां से गया है। अब उसके बारे में ये मैं चंद हदीस से आपको सुना रहा हूं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि हुजूर ने फरमाया, ला तमनऊ इमा अल्लाह मसाजिदिल्लाह वलाकिन यखरुजना वहुम तफिलात। हुजूर ने फरमाया, क्योंकि शुरू में मस्जिदों में आते की इजाजत थी, आए मस्जिदों में, तो फरमाया अब अल्लाह की इन कनीजों को, बांदियों को मस्जिदों में आने से मत रोको, लेकिन वो आए कोई इत्र लगा करना, खुशबू लगा करना, वो उस शक्ल में आए। अगर वो इत्र लगाकर खुशबू लगाकर आएंगी तो फिर मना, तो उनके लिए रुकावट है। एक वाकया है कि एक औरत मस्जिद से निकल कर जा रही थी कि हजरत अबू हुरैरा ने उसके पास से गुजरे। हजरत अबू हुरैरा, ये जो पहले रिवायत मैंने आपको सुनाई है ये अबू दाऊद और अहमद की है, मुस्नद अहमद और सुनन अबी दाऊद रहमहुल्लाह। और ये जो है जो अब सुना रहा हूं ये सुनन अबी दाऊद, सुनन इब्न माजा, मुस्नद अहमद और सुनन नसाई की रिवायत। एक औरत मस्जिद से निकल कर जा रही थी कि हजरत अबू हुरैरा उसके पास से गुजरे। उन्होंने महसूस किया कि वो खुशबू लगाए। उन्होंने उसे रोक कर पूछा, है खुदाए जब्बार की बंदी, क्या तू मस्जिद से आ रही है? उसने कहा हाँ। बोले, हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, मैंने अपने महबूब अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना है कि जो औरत मस्जिद में खुशबू लगाकर आए उसकी नमाज उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक वो घर में जाकर गुस्ले जनाबत कर, ये गुस्ले जनाबत का लफ्ज होती कि दर हकीकत इसमें एक जिनसी जज्बे की गोया के बेदारी का मामला पैदा होता है। तो जैसे कि मुबाशरत के बाद गुस्ले जनाबत है, ऐसे ही इस किस्म के किसी अमल के बाद भी उस औरत पर लाजिम है तो जनाबत, वो गुस्ले जनाबत है। अबू मूसा अशरी फरमाते हैं, ये भी तिरमिजी की, अबी दाऊद की, नसाई की रिवायत,
ابو موسیٰ अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा इस्तअतरत अल-मरअतु फमर्रत अलल कौम लियजिदू रीहहा फहिय कज़ा व कज़ा क़ाल क़ौलन सदीक़ा। ये हुजूर के अल्फाज हैं, नोट कीजिए। जब कोई औरत इत्र लगाती है और फिर वो मर्दों के पास से गुजरती है कि लोग उसकी खुशबू जो है वो पाले, तो वो ऐसी और ऐसी, और हुजूर ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। और अंदाजा कीजिए रावी वो अल्फाज नकल नहीं करना चाहता जो हुजूर ने इस्तेमाल किए। किस कदर सख्त वो अल्फाज होंगे कि जो हुजूर ने इरशाद फरमाए कि रावी को हिजाब हो रहा है उन अल्फाज से दोहराना। वकाला कज़ा व कज़ा फहिय कज़ा व कज़ा वकाला क़ौलन सदीक़ा। हुजूर ने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल फरमाए और कहा कि वो औरत ऐसी है और ऐसी। आपकी हिदायत ये थी कि औरतों को वो खुशबू इस्तेमाल करनी चाहिए जिसका रंग तेज हो और बू हल्की, मतलब मेहंदी है उसमें रंग है, उसकी आज़ाइश, इसीलिए वो हमारी तहजीब का चीज बन गई। मर्दों के लिए वो खुशबू जिसमें खुशबू हो, रंग नहीं है, लेकिन औरतों के लिए वो खुशबू के जिसके अंदर हल्की सी कोई अगर है भी, लेकिन ये कि वो इतनी नहीं है कि जो ज्यादा आम हो सके, फैल सके, लेकिन ज्यादा रंग का मामला हो। इसी तरीके से देखिए औरत की आवाज का भी पर्दा। चुनाचे सूरह अहज़ाब का वो लफ्ज़ हम पहले नोट कर चुके, बल यख़ज़ाना मिनल क़ौल, अपनी आवाज के अंदर लोच न पैदा होने दें। लेकिन उसके साथ ही नोट कीजिए कि नमाज में अगर इमाम भूल जाए तो मर्दों को हुक्म है कि सुभान अल्लाह कहें, मगर औरतों को हिदायत की गई है कि अपने एक हाथ पर दूसरा हाथ मार कर सिर्फ मुतवज्जे करें, मुतनब्बे करें, आवाज नहीं। इसलिए कि औरत की आवाज उसका भी पता। चुनाचे फरमाया तस्बीह लिर्रिजाल व तस्कीक लिन्निसा। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मुस्नद अहमद की रिवायत है, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, सुनन अबी दाऊद की है, सुनन नसाई की है, सुनन इब्न माजा। मर्द जो है वो मुतवज्जे करेगा, मुतनब्बे करेगा सुभान अल्लाह कहकर, तस्बीह लिर्रिजाल, और औरत का ये कि हाथ पर हाथ मार उससे मुतनब्बे कर दे कि इमाम ने गलती की है, लेकिन उसको सुभान अल्लाह भी नहीं कहना कि उसकी आवाज से नमाजियों का ज़हन उस खातून की तरफ मुंतकिल न हो। मालूम ये हुआ कि ये जो है वला यज़रिबन बिअर्जुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीन मिन ज़ीनतिहिन्ना, ये दर हकीकत सिर्फ इसके लिए नहीं कि अगर चलते हुए पांव मार कर चल रही औरत जिसकी आवाज की वजह से लोगों का ज़हन उसकी तरफ मुंतकिल हो, बल्कि इसी पर कयास कीजिए कि इत्र लगाकर अगर वो यही काम कर रही है, अपनी आवाज के जरिए से यही काम कर रही है, तो ये तमाम चीजें भी नापसंदीदा हैं, इनसे भी मना कर दिया। आखिरी अल्फाज है वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मोमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, और तौबा करो अल्लाह की जनाब में सब के सब मिलकर, ए अहले ईमान, ताकि तुम फलाह पाओ।